So this is the lecture 1 of the subject which is named as Basics of Electronics and Electronics Engineering, right? BEE. Lecture 1 में I think it's very important for you to know हम इसमें cover क्या करने वाले हैं. We have decided to start with the heading of number system and codes. Just a second. So हमारे पास जो heading है वो है number system and codes. ठीक. इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है, हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम किस टाइप के होते हैं, इस नंबर सिस्टम के क्या अंदर क्या क्या होता है. सो द बेसिक थिंग्स दैट यू विल गो थ्रू इन अ नंबर सिस्टम इज, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. पहला पॉइंट लिखिए जरा, ये आपका पहला पेज होगा जिसमें आप सिलेबस के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा. देन लेट्स मूव अहेड विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट. और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर आप पहले पेज पे अपना सिलेबस चिपकाएंगे ना बेहतर रहेगा, सो दैट यू हैव अ क्लियर ट्रैक कि हमारा सिलेबस कहाँ पे है, क्या है. ठीक. सो नंबर सिस्टम में आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम फॉलोड बाय कन्वर्शन. Say this is a representation. Then you have conversion. Then you have arithmetic operations maybe. And then maybe complements. Complements क्या होता है? Any idea? Not in a restaurant, but I am talking about the subject. Complements क्या होता है? Suppose अगर हम किसी चीज को इन्वर्ट करेंगे, उसको हम complement कहते हैं फिलहाल के लिए. अच्छा, पूर्ण सबसेट ऐसे A is a subset of which A is intersection B, फिर हम कहते हैं A is equal to complement of B and all that. अच्छा यार, complement means inverted version, मतलब अगर ये 1 है वो 0 होगा. ठीक है. Anyways, let's move ahead. So we have to start with number system and just write the first line please. A number given as x, y, z with base r, a number given as this means that the base of this number is r, means that the base of this number is r and its digits are x, y, z. ठीक. Means that the base of the number is r and its digits x, y, z will decide the weight of the number, and its digits x, y, z will decide the weight of the number using base r. ठीक. And its digits x, y, z will decide the overall weight of the number using base r. ठीक है. अब अगर अब मैं एग्जांपल दूं, हम ये क्या है, ये बताओ 12. लेकिन ये किस में है? अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, एक्चुअली हमें इसको इस तरह से लिखना है 12 base 10, क्योंकि डेसिमल की या जिन पैसों की हम बात करते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, हाथ रुपये, वो हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ठीक है. So therefore this becomes the decimal representation of 12. लिखिए जरा अपने नोट्स में. 12 10 means decimal representation of 12, है ना. उसकी बेस क्या होगी? अच्छा कौन से अच्छा डेसिमल सिस्टम पर है ना, 8th decimal system.
That is the base is 10. So हम क्या कहते थे फिर? This is what place? 0 1 0 place, yeah? In ones. Ones place. This is 10th place. This is 100th place. Wow, we are going back to 8th class. What is the reason for that? By ones place we actually mean the value of this digit. Yeah, the place value is 10 raised to power 0. The place value is पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो. Place value. मतलब जहाँ पे ये है उसका place value है 10 raised to power 0. And 10 raised to power 0 is nothing but 1. Okay? ये जो ये वाली प्लेस है इसका प्लेस वैल्यू है 10 रेज़ पावर 1, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज टेंस प्लेस। जो तीसरी वाली प्लेस है उसका प्लेस वैल्यू है 10 रेज़ पावर 3, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज 100, सॉरी 10 रेज़ पावर 2, 1 के बाद 2 आएगा। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 10। अब जब हम किसी भी नंबर का वैल्यू निकालते थे तो ये वाला पार्ट जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। सो 1 into 10 is how much? 10. Also 10 rupees you have. 2 into how much? 10 or 1? 2 into 1 is equal to 2. So when you add them it becomes 12. So that's how 12 is 12. Do you get my point? किसी को समझ नहीं आया? Raise your hand. Good. अच्छी बात है. I want to confuse you also. Reason being, खैर ये तो decimal का आ गया. अब सुनिए मुझे एक्चुअली कहना क्या है. तो जरा raise कर जो मुझे एक्चुअली कहना है वो ये है that लिखिएगा a number system with base r, a number system with base r. base समझ आया? base क्या हो गया? base समझ आया ना? eyes on board please. when I say eyes on board, anyone should look towards the board straight up irrespective of what you are doing, because for two reasons. one, या तो वो concept wise कुछ important होगा या तो exam wise कुछ important होगा, and I don't want any one of you to miss that. ठीक है? अगर तू cautious हो ना या 21 घंटे every one of you will score at least above 80. I assure you that. But इस घंटे आप पूरा बराबर ध्यान रखो, खुद को फोकस करो कि मैं माइंडफुल रहूं क्लास में, और माइंड डाइवर्ट तो होगा, लेकिन when your mind diverts, just relax, take a deep breath and think about what is written is important, not anything else. ठीक? Okay. This is called as base. यहाँ इसको दूसरा नाम कहते हैं radix. ठीक? अब देखो जब मैंने बोला आइज ऑन बोर्ड, जिसने बोर्ड कर नहीं देखा, अब जब वो नोट्स में देखेगा वो बोलेगा ये क्या है, ये बेस क्या चीज है, ये रेडिक्स क्या चीज है। शायद सर को गलत हो गया है, एरो बेस इसको कहते हैं, बिकॉज माइंड एडाप्टिव चीज है, समझ ना आती क्या ये वीडियो बता रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाट इज रिटन इन अ प्रॉपर वे। सो दिस इज कॉल्ड एज बेस। अब देखिए, a number system with base r, a number system with base r will have r different digits. A number system with base r will have r different digits. Where the digits range from 0 to r minus 1. Where the digits range from 0 to r minus 1. Now what this means is this. हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, मैंने यहाँ पे बेस ली, से मैंने r लिया इक्वल टू 2, मैंने r लिया इक्वल टू random number. What can be the different digits? कौन बोल रहा था? Raise your hand. Who can tell me the answer? Raise your hand. Can you tell me the answer? Yes or no? You can tell me the answer. Say it loud and clear. What can be the digits? Excellent. That's the right answer. 0 and 1. मतलब 0 comma 1 हम लिखेंगे. Did you get the point? अब देखिए, अगर मैंने बेस r लिया है इक्वल टू 10 2 मिनट के लिए, चलो 10 नहीं लेंगे अभी, पहले 8 लेंगे। अगर मैंने ली है बेस इक्वल टू 8, कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द डिफरेंट डिजिट्स? लाउड एंड क्लियर. व्हाट?
जीरो अपने पूरे बोलो, जीरो मैंने बस इससे पूछा था, 4 5 6 7, excellent, and this is 0 and this is r minus 1 which is equal to 8 minus 1 equal to 7. पता समझ सारा? Can you see the magic? ठीक है? Now let's go to one more, that is your decimal. अब यहाँ पे असली हमारा क्रॉस चेक होगा, decimal में कितने digits निकलेंगे, and that is obvious. The digits in decimal number system, while the base r happens to be 10, start from 0 and they end at 9. Is it true? Is it true? Yes, it is, because 9 के बाद जो भी numbers बनते हैं वो इनकी combination से ही बनते हैं. 8 9. So 10 is not a single digit. We are talking about असली single digits. ठीक है? क्योंकि suppose आपने अगर 10 लिख रहा हूँ, 10 बना इस digit और इस digit को लेके, so maybe मुझे वहाँ पे ऊपर ऐड करनी थी एक term where the single digits, यहाँ पे लिखा digits, वहाँ पे explanation के लिए where the single digits, where the single digits range from 0 to r minus 1. ठीक है? अब अगर मैं आपको एक नंबर सिस्टम देता हूँ, उसकी बेस r है, r is equal to 64. Can you tell me how many numbers will be there? How many digits will be there? How many? No, just tell me number. How many digits will be there? Question को सुनो. How many digits will be there? मैंने r लिया 64. There will be 64 digits, but they will start from 0 to 63 only. Do you get my point? That is the number representation. So our first part is done. digits है कि number of digits है? हाँ, मैंने पूछा number of digits है 64. तो सर मतलब जैसे हमने r is equal to 8 लिखा ना, तो हमने 0 से 7 तक. और इसकी बेस है, Yes sir. जिससे इसका प्लेस वैल्यू बाकी सारी चीजें डिसाइड होती हैं. हाँ, फिर पूछो. तो हमने वो लिया 0 से 7 तक. तो अब 0 से 7 तक हम नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं कि 8 9 नहीं इस्तेमाल. हाँ, 8 9, हाँ एग्जैक्टली राइट. 8 9 नहीं इस्तेमाल कर, इसमें 8 9 नहीं होगा. जैसे इस नंबर सिस्टम को, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चन पूछा कि इस नंबर सिस्टम में 9 वगैरह चीजें 9 10 ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट इज ओनली अप टू 7. लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, दूसरी चीज, मुझे एग्जाम के टाइम कोई ये पूछने नहीं आएगा इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है. मैं क्लास में ही कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, उसी को आप कॉशियसली नोट डाउन करते रहें. दैट्स इनफ. ठीक है? नोबडी शुड कम टू मी, सर क्या इंपॉर्टेंट है, ये बताइए वो बताइए. मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया है. बस आपको क्लास में कॉशियस रहने की जरूरत है और क्लासेस अटेंड करने की जरूरत है. अगेन सेम थिंग, आपके 80+ आ ही जाएंगे, लेकिन व्हेन यू आर सिंसियर इनफ इन योर क्लासेस, बिकॉज क्लास में ही कुछ ऐसी चीज़ बताई जाती है जो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. एक क्लू देता है टीचर, वो समझना है. एंड दैट इज फॉर दोज हु आर देयर, एंड दैट इज फॉर दोज हु आर देयर एंड दे आर कॉशियस. बीइंग हियर एंड जस्ट, मैं सोच रहा हूँ यहाँ बागस तुम कोई जवाब ना वैसा तब लेकिन कोई फेल है. ये चीज़ समझिए, then इसका कर सामने. एनीवेज, इस सिस्टम को जहाँ पे बेस हमारी है 2, इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. This system is called as binary number system या binary numbers. इसको हम कहते हैं, जहां पे बेस 8 है, इसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. इस सिस्टम नंबर सिस्टम में जहां पे बेस 10 है, इसको हम कहते हैं डेसिमल. Now if my base r happens to be 16, जरा ये आप फिल कर लीजिएगा. r 16 है, ये डिजिट सारे फिल कीजिए. नहीं, आपको नहीं आएगा, मैं दिखाता हूं. नहीं कीजिए, जरा गलत ही कीजिए एक बार. r is equal to 16, इसको हम कहते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम. आपका बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्सा डेसिमल हो गया. ठीक है, ये आपके काफी है. जरा हेक्सा डेसिमल के लिए मुझे बताइए क्या होंगे डिजिट्स. पहले बताइए हेक्सा डेसिमल में कितने डिजिट्स होंगे? कितने, जोर से बोलो. 16. वो डिजिट्स कौन से होंगे, जरा वो लिख लो जल्दी से. Can you just write them please? Write the digits. आपके हेक्साडेसिमल में ये नोट डाउन कीजिए प्लीज वेरी क्लियरली. जो नंबर्स होंगे वो होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड 9 के बाद होगा A. 10 नहीं होता है. A के बाद होगा B.
11 नहीं होता है, C 12 के बदले, D 13 के बदले, और E 14 के बदले, और F 15 के बदले। आया समझ? ओके, आप जरा बेटा खड़े हो जाओ, जरा जाओ। मुझे अब लिखना है 15 हेक्साडेसिमल में। मैं कैसे लिखूंगा? 15 लिखना है हेक्साडेसिमल में, कैसे लिखूंगा? जरा सही फॉर्मेट में लिखो ना, लिखो आप ऊपर 15। नहीं, R15 नहीं है बेटा, R15 नहीं है। R हो गया बेस, और R16 रहेगी। R मुझे 15 लिखना है, सिंपल 15। कैसे लिखेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर है 15, इसका इक्विवेलेंट मुझे जरा लिखना है हेक्साडेसिमल में, क्या होगा? इतना ही आएगा। बेमत ब्रैकेट में बनाओ, हाँ बेस पर लिखो। समझ आया आपको? प्रॉपर से थैंक यू। प्रॉपर तरीका लिखने का ये है। सो आज से आप अगर तक 10 रखी, आज से कोई हिसाब 10 रखी तो लिखने लगते हैं 10 बेस 10, ठीक है? फिलहाल के लिए इस सेम के लिए आदत बना लीजिए, क्योंकि अगर आपने बेस 10 की, आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। तो बेस लिखने की आदत फिलहाल डाल दीजिए। So that means if I tell you to convert any number into any other number system, you have to precisely mention the base of both the numbers. ठीक है? Okay? ठीक है? हाँ, इसकी बेस 16 है ना ये, because इसकी बेस 16 है, that is the origination number. वो दे के होता है, that is because मैंने आपसे कहा ना हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की बेस 16 ही होती है। That's what you have to write. Had I asked you, if I tell you that, एक मिनट, if I tell you that आप 15 लिखिए ऑक्टल में, आप 15 लिखिए, छोड़िए फिलहाल नंबर क्या आएगा, लेकिन उसकी बेस आएगी 8, क्योंकि ऑक्टल की बेस क्या होती है, आप बताइए। सर आपने बोला ये मतलब अल्फाबेटिक होता है नाम के बाद, सर अगर आपने बोला कि 64, सर वो आएगा Z के बाद मैंने आपको रैंडम नहीं एग्जाम्पल दी 64, दैट इज नॉट लाइक, वो आपको वहां जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, वो कोई नंबर सिस्टम नहीं है, वो मैंने खुद बनाया रेडी, ठीक है? इट इज गुड दैट यू हैव इंटरेस्ट इन माइंड, यू शुड आस्क क्वेश्चन, दैट इज गुड। सो फिलहाल के लिए हमारे जो कंसर्न जो नंबर्स हैं, सर काम कर रहा है। अच्छा बेटा इधर पढ़ो आप, जो हमारा नंबर सिस्टम के जो कंसर्न है ये फिलहाल यही 4 है, ठीक है? इन्हीं 4 पे हमारा फोकस होना चाहिए। मैं ये बात फिर से कहूंगा, जो सब्जेक्ट आपको समझ आ रहा है वो आपके लिए आसान बन गया, और आसान सब्जेक्ट में आप यू स्कोर वेल। ये सब्जेक्ट आप समझ जाओ, आसान बन जाए। और ये नया है ना, आपके लिए बी सब्जेक्ट नया है और मेरे लिए आप सब नए हैं। आई हैव नो इम्प्रेशन व्हाटसोएवर ऑफ यू पीपल, राइट? irrespective of you have continuous backlogs maybe till now, but for me you are new. For me every student of you is of equal capability, of equal mind, but you will show me what we actually are, and I'll be more happy if you show me that we are of the best of the character in terms, both in terms of behavior as well as your academics, ठीक है? Anyways, so this means that we will have to understand the next heading, which is conversion. So लिखिए conversion, नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए कन्वर्शन। अब जरा मुझे एक चीज बता दीजिए, कन्वर्शंस कितने होंगे? बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्स, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्स, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? एनीबॉडी विद स्ट्रांग मैथ्स बैकग्राउंड, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? लिखो जरा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, अपनी नोटबुक से लिखो। 4 फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल ना, एनीवेज ये था कॉम्बिनेशन बना, कितने लिखी थी, नो डाउट की थी कन्वर्शन है हिस्ट्री। लेकिन इससे पहले कि हम खाली कन्वर्शन सीखे, आइज ऑन बोर्ड प्लीज। अभी तो मेरे लिए काफी हैक्टिक बन जाएगा, मैं देखूं इसके लिए क्या रूल है, डेसिमल टू ऑक्टल के लिए क्या रूल है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्स। सो लेट्स मेक अ सिंपल रूल, लेट्स मेक अ सिंपल रूल दैट, आप लिखिए, फॉर कन्वर्शन
for conversion of one number system into another number system, one number system into, yeah, for conversion of numbers from one system to another, we will try to make a universal method. We will try to make a universal method for each category. We will try to make a universal or general method. We will try to make a general method for each category. ये बोर्ड बंद करवा लेना। और ये हाँ क्या होगी होगी या नहीं होगी, फिलहाल ये काम कर लेना, बाकी बाद में देखेंगे। ओके, सो द हेडिंग इज कन्वर्शन एंड इसमें देखिए, सो वी स्टार्ट विद टाइप 1 और केस 1, डेसिमल टू any other system with base r। आपको समझ आया? अगर मुझे कोई डेसिमल नंबर होगा, आईज ऑन बोर्ड प्लीज, अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर होगा, या तो मुझे वो डेसिमल कन्वर्ट करना होगा किसमें, बाइनरी में, या तो ऑक्टल में, या तो हेक्स में। अब बजाय इससे कि मैं तीन मेथड्स याद रखूं, मैं एक यूनिवर्सल मेथड याद रखूंगा, डेसिमल टू एनी अदर। ओके, so the method is, देखिए, for example, to convert say 29.625 into a number system with base r, we divide the integer part, we divide the integer part by any guesses? R, जिस बेस में कन्वर्ट करना हो। ये क्यों नहीं मुझे आपने याद दिलाया? मैं भी कोई गलती करूं वो बताएं मुझे, बिकॉज ओवरऑल दिस क्लास इज फॉर लर्निंग। दिस हार्डली मैटर्स मैं आपसे सीखूं या आप मुझसे सीखें। एज लॉन्ग एज वी आर मेंटेनिंग द लर्निंग एटमॉस्फेयर इन द क्लास, वी आर सक्सेसफुल। ठीक है? सो यहाँ पे बेस है 10, इसकी बेस क्या है, दिख रहा है ना सबको? ऋषि बोल दे वहां यू। ओके, so therefore we divide the integer, which is the integer part by the way, that's what was right extreme, upside down, खड़े हो जाओ, which is, इससे नहीं पूछना है, दिमाग अपना लड़ा और आंसर दो। इतना आपको पता है, मुझे ही पता है, मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पता है आपको पता है। ठीक, सो मोस्टली जब भी मैं किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछूं, इट्स नॉट अ टेस्ट, बिकॉज आपको मैं टेस्ट दूंगा एग्जाम में, और उस टाइम टेस्ट खतरनाक होगा। यहाँ पे मैं क्लास में जब क्वेश्चन पूछूं, मुझे पता है बच्चे को पता है, इसलिए मैं आपको सामने बताता हूँ। वो बोझ में सवाल बड़ा आराम से दबाओ से रीसेट बटन पर दबोता बोझ हो। ये आपका नंबर है डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर्स पढ़ा है बचपन में। तो मैं कह रहा हूं, we divide the integer part by r, which is the integer part in louder voice please। integer part कौन सा है इस नंबर का? integer part कौन सा है? 29। ये पार्ट को क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं हम? डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट ना बना शायद। सिट डाउन, आया समझ? सो मैं बात कर रहा हूं जो इसका इंटीजर पार्ट होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं बाय r, और लिखिए एंड वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि अगर हम डेसिमल लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय r repeatedly until
we get until we get the respective fractional part equal to 0. ठीक, जरा क्या लिखा आपने, आप बताइए क्या लिखा आपने। अच्छा आप लिख ही रहे हैं, चलो लिखता मन से क्या लिखा, जल्दी पढ़ो। एक चीज में छोटा सा ऐड कर दीजिए, वी डिवाइड द इंटीजर पार्ट बाय r कॉमा एंड नोट द रिमाइंडर। और हम क्या नोट करते हैं, रिमाइंडर जो बचेगा। खोद एंड वी नोट द रिमाइंडर। नाउ लेट्स डू इट एंड लेट्स फिनिश इट। Okay, let's go with an example. Example number 8. Decimal to binary. I have written a decimal to bin, huh? Decimal to bin मतलब binary. That means you will have a number which is 29.625. It will be represented with base r. You have to convert it to binary, where the base happens to be dash dash dash. Base is 2. So the number is here. Let me take the integer part first. Integer part को क्या करना है, 29. Why? That's the integer part is LCM में divide section. किससे पहले सवाल है सबसे, किससे कर रहे हैं इसको? Everyone in one was किससे? अब R नहीं रहा, मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ ना, किससे? 2 से. Do this please. 2 हाँ 2 4 था, just move up इधर चलो थोड़ा. So इसलिए 2 1 2 4, रिमाइंडर क्या आया 1. आप यहाँ साइड में नोट डाउन करें, ठीक है, समझ आया? You just go ahead and tell me 2 80 पर 1 2 7 आ, रिमाइंडर क्या आया 0 को नोट डाउन, ठीक है. अब 2 3 are 6, रिमाइंडर क्या आया 1. समझ आ रहा है ना एवरीवन? eyes on board please. रिमाइंडर 1. now 2 1s are 2, रिमाइंडर क्या आया 1. ठीक, अभी भी करना है इसको 2 या इसको रहने दो, लेकिन आंसर यहां से शुरू होगा. बेहतर इट इज बेटर कि 0 आप यहां मिलाओ. 2 0 सा राइट, वही करना है. 2 0 सा 0, रिमाइंडर आपका 1 रहेगा. ठीक, हमारी जो जिंदगी है वो कहां से शुरू हुई? बचपन से, एक बहुत छोटी लेवल से, है ना? बताओ आपकी जिंदगी कहां से शुरू हुई? एक बहुत छोटी लेवल से, ठीक, नीचे से शुरू हुई. तो इसका आंसर भी लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ, इसका आंसर भी लिखना है. सो द आई वुड से द इक्विवेलेंट ऑफ 29 इन बाइनरी इज हैड इट बीन खाली 29 होता तो 29 का खाली इक्विवेलेंट बाइनरी में आएगा बोर्ड क्या आएगा, आप बताओ. राइट, 1 1 1 0 1. So this is the answer in binary of the integer part only. Now we have dealt with the integer part. सबने कॉपी कर लिए? डन. सो इंटीजर पार्ट के लिए जहां से आपकी जिंदगी शुरू हुई वहीं से आंसर लिखना शुरू करना है. दैट इज बॉटम टू टॉप. ठीक है, द आंसर इज 11101. हाँ, ये खाली 29 का है. अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है. चलिए, now let's go to the fractional part. Are you taking clear notes? डेसिमल पार्ट के लिए क्या करना है? डिवाइड
फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करना है, 1. So now this is part number A. Now let me go for the fractional part. For fractional part, what I do is I take my 0.625. यही है ना फ्रैक्शनल पार्ट, बिकॉज पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना जरूरी, एंड आई मल्टीप्लाई इट बाय बेस. व्हाट इज द बेस? ये कितना आया? जल्दी करो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया. 1.25. ओके, अब सारा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. इसमें ये है कि असली जो रेस्पेक्टिव इसका जो ये वाला पार्ट है वो 0 आएगा. सूत्र में एकदम समझ है. इसका जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ अलग से नोट डाउन करूंगा एज 1. जो ये वाला पार्ट आया ना इसका, क्या जो इसका इंटीजर पार्ट आया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जो इसका इंटीजर पार्ट आया, अगर वो 1 है या कुछ भी है तो मैं वो यहाँ पे अलग नोट डाउन करूंगा. जो ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट बचा इसको मैं फिर से लूंगा 0.250. इसको मल्टीप्लाई करो बाय 2 अगेन. ओके, ये कितना आएगा? 0.5. अब जो यहाँ पे इंटीजर पार्ट आया उसको फिर से नोट डाउन करूंगा. क्या स्क्रीन में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट जरा आगे चलिए. इसको क्या करना है? नोट डाउन. कहां पे? अलग से. तो ये आया मेरा 0. अब जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा फिर से, अभी ये 0 नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे क्या करना है? until we get the respective fractional part equal to 0. यहाँ पे लिखिए we get the respective fractional part equal to 0. अब ये 0 है, yes or no? तो इसको फिर से लेंगे हम 0.5 इनटू क्या करेंगे? 2. क्या आया? 1.0. हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया एंड वी हैव टू स्टॉप हियर. ठीक. दबान जो कोई भी चीज कमाल पे पहुंचती है उसका जवाब भी होना है. दैट मींस वो कहां से आती है? ऊपर से नीचे. ये वाला पार्ट आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे. ये वाला पार्ट आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे. सो आई वुड राइट द equivalent of 6 to 5, that is the equivalent of decimal number 6 to 5 in binary is equal to point आएगा. हाँ, point आएगा कहां से? ऊपर से नीचे. 1 0 1. इन दिस केस नीचे से ऊपर लिखे, ऊपर से सेम आता आंसर, लेकिन मेथड क्या है? ऊपर से नीचे. जो कोई चीज कमाल पे आती है उसका सवाल भी आता है, वो ऊपर से नीचे. so, इस बात से हमेशा याद रखना है. अगर एग्जाम में किसी ने इस तरह से नहीं लिखा तो उसकी मैं हालत खराब करूंगा. मार्क्स तो उसको बराबर मिलेंगे उसने जिस तरह से भी लिखा होगा, लेकिन आई वांट यू टू ऑर्गेनाइज योर पेपर इन द बेस्ट पॉसिबल वे. यस प्लीज. सर, जो बाइनरी है ना हमारा, उसमें हम सिर्फ और जीरोस और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर. जो डेसिमल नंबर्स है वो भी 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. नहीं बेटा, जो आपके डेसिमल नंबर्स है वो उन डिजिट से रिप्रेजेंट होते हैं जो डिजिट्स उसमें होते हैं, लाइक 0 to r-1. जो बाइनरी के डिजिट होते हैं वो भी रिप्रेजेंट होते हैं 0 to r-1. Since the base is 2, so r-1 happens to be 1. That's why it's equal to 1 only. Okay, now what is the complete answer? The complete answer is, the final answer is 29.625 का जो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट. तो बोला यार जो हमें बेस लिखना है. The answer is, ये वाला पार्ट तो है इसी तरह से लिखना है, that is 1 1 0 1. पॉइंट ये वाला पार्ट है इसलिए उठा के लगाना है यहाँ. 1 0 1. So this happens to be the binary equivalent of this number, and I think हमारे क्लास हो गई कि अभी है टाइम? अभी है. Sincerity is the key. अभी कितने मिनट है क्लास में? 10 मिनट. That is the right answer. ठीक है? Okay. So this is the final answer जो आप देख रहे हैं.
अब आप छोटा सा असाइनमेंट लिखिए वहीं पे, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। दिस इज नाउ ए पार्ट हमने किया, बी पार्ट है डेसिमल टू ऑक्टल। नंबर यही है, डेसिमल टू ऑक्टल करना है आपको, नंबर यही है। जल्दी से कीजिए। डेसिमल टू ऑक्टल करना है, नंबर यही है। सिर्फ ऑक्टल की बेस क्या रहेगी? 8। वेरी नाइस। सो पार्ट 1 I will take the first integer part. क्या बात बेटा? Anyone who has done, raise your hand. जिसने integer part किया, integer part का आंसर क्या आया? Excellent. That's the right answer. 25. Do it slowly. जिसको नहीं आता है आराम से करो, अपने दिमाग के पेस के हिसाब से चलो, मसला नहीं है कोई। आप अपने दिमाग के पेस के हिसाब से चलो, जल्दी कोई नहीं है ये सीखने। Stop everybody now. Stop. जिसने किया नहीं किया stop now. Eyes on board. तो इसको क्या मेथड है? इसका एलसीएम करना है, इसको डिवाइड करना है। सो 8, हाँ 8 1 जा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो बियॉन्ड हो गया। हम 8 3 वाला लेंगे, 8 3 जा 24। लेकिन बचा कितना यहाँ पे? 5 को यहाँ अलग से नोट डाउन करेंगे। नाउ 8 नो वैल्यू, सो 8 0 जा आई विल टेक। So 8 0 0, बचा यहाँ पे 3। तो 3 को हम, ये आदत रखो यहाँ पे इधर 0 लाने की, उससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आंसर इज व्हाट? 25, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुनो जरा, सुन लो, पॉइंट समझ आया? आप चलते हैं किस वाले पार्ट पे? फ्रैक्शन वाले। फ्रैक्शन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन किससे? बेस जो होगी। इस केस में बेस क्या है? मतलब वी आर कन्वर्टिंग डेसिमल टू लाउड, डेसिमल टू डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल की बेस क्या है? तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। और कब तक मल्टीप्लाई करते जाना है? आपसे पूछ लो, कब तक मल्टीप्लाई करते जाना है? बैठ पावा तक, कोई रिएक्शन में बैठ करते हैं जब तक क्या? यस, जैसे पूरा बोलो ना, जब तक 0 नहीं आएगा। क्या 0 नहीं आएगा? कबूतर। जब तक फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं हो जाएगा। तो 0.65 into 8, हाँ? अच्छा, यह आपसे थी 5.00। तो क्या फ्रैक्शन पार्ट? आपका नाम क्या है? हाँ? बस 5.00, हाँ? 5.00। So fraction part 0 हो गया। So you will take this 5 outside the box. So the answer happens to be 35.5. Now one more quick assignment. Decimal to hex. Decimal to hex. Decimal to hex. लिखा आपने 35.5? Decimal to hex. ये आसान होता जा रहा है। Decimal to hex. नहीं, ये भी करेंगे। डेसिमल टू हेक्स 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 कितना, लेकिन बचा कितना वहां पे? रिमाइंडर बचेगा 13। 16 0 जा, रिमाइंडर बचा 1। तो 1 और 13 आया। अब फ्रैक्शनल पार्ट पे चलते हैं। 0.625 into 16 कितना आएगा? वो सीधा आया आपका 10.00, है ना? लेकिन आइज ऑन बोर्ड प्लीज। लेकिन हेक्स को तो पता ही नहीं चलेगा 10 क्या है। हेक्स मत 10 को इशू है का इवैल्यूएट ही करे 10 क्या है। व्हेन यू टॉक अबाउट हेक्स नंबर्स 10 इसको पता नहीं चलेगा। तो जो यहाँ पे आपको 13 आया, ये 13 असली 13 नहीं है, ये है आपका D। ये 1 नहीं है, तो क्या है?
वन तो है, बिल्कुल नहीं आप बोलते ये वन वन ही है, क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल में वन होता है लेकिन 10 नहीं होता, 10 होता है हेक्साडेसिमल में, वहाँ पे 10 के बदले a होता है, उसका वैल्यू 10 ही है। लाइकवाइज यहाँ पे 10 1 0 जो 10 है इसको 10 नहीं लेना, इसको a लेना है। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1 d point a. Do you get my point? Yes, sir. You get my point? Now a random one. Suppose कोई नंबर है, उसकी बेस है 4, ये आपके लिए असाइनमेंट। कोई नंबर है, कोई भी नंबर सिस्टम, उसकी बेस है 4, पहली चीज उसके जो डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे? 0 to 3 भी, ठीक है? तो कर लीजिए जरा इसको अपने हिसाब से घर पे जाके, ठीक है? इसका आंसर है 1 to 1, ये आप लिख लीजिए और अपने हिसाब से इसको करते जाइए, ठीक है? तो स्टॉप कीजिए, इसका आंसर है 1 to 1, इसको आप कीजिएगा अपने हिसाब से। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो हमें बताइएगा। With that we end today's class and see you in the next class.